evening, everybody, and welcome to SRPS International School, Bankhedi. Today, I am joined by our honorable chief guest, Mr. Ashok Kumar Dhyanchand sir, and who is here to give us his small time of interview. That we will be very happy to take his a very small time for our interview today. There's nothing much to say about sir because he is very much talented, as we all know, like why we are here and why we are taking Mr. Ashok sir's interview. Mr. Ashok sir played in 1960 to 67 and all India universities in 1968 to 69. Thereafter, he moved to Calcutta to play for Mohan Bagan Club and represented Bengal in the national championship in Bangalore in 1971. Afterwards, Mr. Sir represented India in the Olympic Games twice in 1972 in Munich and in 1966 in Montreal. In 1972, India finished third, and in 1976, India finished seventh, the first time since 1928 that India was not in best place, but it was in the top place. He played at the Peshtashuka International Tournament in Singapore in 1971 and captained the team to the 1979 Asanda Hockey Tournament in Perth, West Australia. He played for all Asian Star team where all the Asian Stars teams where his father, respected Dhyanchand sir, watched him play for the first time in 1974. Afterwards, selected twice for the World 11 team. Very right. After that, he was a member of team that won the bronze medal at the first World Cup in Barcelona in 1971 and silver at the second World Cup in Amsterdam in 1973. The highlight of his career was the 1975 Hockey World Cup in Kuala Lumpur, where he scored an important goal in the final match for India against Pakistan. On a pass from Surjit Singh, Kumar hit the ball goalwards. The ball hit the corner of the post and bounced out. But for a fraction of a second, the ball had been in a goal, and despite protest Pakistan's, the Malaysian Empire confronted the goal, and that's how 1970 World Cup in Argentina, when India was relegated to the sixth positions. Thank you very much for coming, sir. I'm very Thank you, happy Mr. to have you. Ansari. Thank you very much. या सो सर मुझे आप बताइए सर कि आज हमारे इस बनखेड़ी में आकर हमारे SRPS स्कूल में आपको सर मतलब कैसा लग रहा है सर कि मुझे अपना स्कूल याद आता है जब भी मैं स्कूलों में फंक्शंस में जाता हूँ और बच्चों के साथ खड़ा होता हूँ. जी सर. सो आई ऑलवेज रिमेंबर माय स्कूल डेज. जी सर. और स्कूल ही एक ऐसी जगह होती है सबसे पहले घर के बाद जी. जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर हमारा होता है बच्चे का, जब उसका थोड़ा ज्ञान बढ़ता है तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमको जो बोध होता है, जो ज्ञान आता है, जो हमको फीलिंग साथ पैदा होती हैं, वो घर से होती हैं. जी सर. जिनको हम कल्चर भी कह सकते हैं, संस्कृति भी कहते हैं, परंपराएं भी कहते हैं. और सेकंड जो हाउस होता है वो होता है स्कूल. तो वो स्कूल मुझे आज याद आ रहा है और डेफिनेटली इतना बच्चों के अंदर इंथुजियाज्म, उनके अंदर इतनी खुशी मैंने चेहरों पे देखी बच्चों के, और होनी भी चाहिए क्योंकि ये बच्चे आगे बढ़कर हम जैसे ही जो हमने जो काम किए हैं या हमारे दूसरे क्षेत्रों में जो लोग आएंगे, इन बच्चों से मिलेंगे, तो उनको उनसे प्रेरणा लेकर, उनसे इंस्पायर होकर ये बच्चे आगे बढ़ें. और डेफिनेटली स्कूल का नाम तो होता ही है. हम सब जानते हैं इस बात को कि कोई भी बच्चा अपने स्कूलों को नहीं भूलता, कॉलेज को नहीं भूलता. तो ये बच्चों के लिए स्कूल बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है जहाँ पर मल्टीपर्पज़ चीज़ें इनके दिमाग में कई ऐसी चीज़ें आती हैं जो आनी भी चाहिए. और कौन सी चीज़ किस वक्त उनको हिट कर जाए, स्ट्राइक कर जाए. अब जैसे मैं कहूँ कि इस वक्त स्कूल के बच्चों में हर तरह की शिक्षा वो ग्रहण कर रहे हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, व्हाटएवर इट इज. लेकिन एक टाइम के बाद किसी एक जगह, किसी एक क्षेत्र में निपुणता हासिल करना वो मायने रखता है. वैसे ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने कई क्षेत्रों में, कई जगहों पे उन्होंने सफलता हासिल की है. लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के इस स्कूल के अंदर जो इतने बेहतरीन ढंग से संचालित हो रहा है, और वो भी बनखेड़ी हमारी जगह में है. मध्य प्रदेश को मैं हमेशा एक स्पिरिचुअल स्थानों में से मानता हूँ कि जहाँ पर हमको
ज्ञान की, अच्छी बातों की बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, बच्चों को मिलती है। तो मुझे वाकई में खुशी हुई है। और सबसे बड़ी खुशी है कि हमारे बच्चे आजकल स्कूल के बच्चे इस तरह के इंटरव्यू ले रहे हैं, जो मेरे लिए तो खुशी की बात है। मैं समझता हूँ इन बच्चों के लिए भी बहुत बहुत प्रेरणादायक चीज़ें हैं कि उनको भी काफ़ी कुछ समझने को मिलता है और मिलता होगा, ऐसा मैं प्रिज्यूम करता, ऐसा मैं मानता हूँ। जी सर। Sir, wonderfully you explained about your childhood days, your student life, your career. That always inspired me. The first time when I heard like Mr. Ashok Kumar Dhyanchand is coming to our school, I was very blessed that I would get a chance to talk to you and interact with you personally, यस sir. मिस्टर, यस। यस। तो सर, जैसा कि हम जानते हैं कि स्पोर्ट्स में हमारे लिए डिसिप्लिन का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स में जो है डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। तो सर, डिसिप्लिन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कई चीज़ ऐसी हैं जो हम, मैं क्या कहूँ, उसको एक्सप्लेन करने वाली होती भी है, और कैसे की जाए इसका एक मुश्किल जवाब होता है। जी सर। डिसिप्लिन जो है ये कोई सिखाने वाली चीज़ें नहीं है, इसको आत्मसात करना है, इसको हमें अपने अंदर ग्रहण करना है। लेकिन वो वही बात की समझ ऐसी चीज़ है कि अगर हम आज बच्चों को इस तरह से शिक्षा दें कि वो इंटर की क्लास के बच्चे के साथ कम्पीट करना शुरू कर दें, ऐसा भी हो सकता है। जी सर। लेकिन वो दिमाग भी चाहिए, वो ब्रेन भी चाहिए, और हमको ऐसी चीज़ें सिखाने वाले, करने वाले हमारे द्रोणाचार्य भी होने चाहिए, जो बच्चों को कम टाइम में कई बातें जो उनकी समझ में आ जाए वो सिखाएं उनको। और ऐसे लोग हैं। लेकिन वही कि डिसिप्लिन तो ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा हम लोग उसूल मान के चलते हैं। और अभी मैंने 3-4 दिन पहले ही एक अपने पेपर इंटरव्यू दिया, उसमें यही हेडलाइन आई कि खेलों द्वारा जो अनुशासन है वो हम उसको जल्दी सीख सकते हैं। तो उसके अंदर रेफरी, एम्पायर, हार जीत, ये वो कई चीज़ें आती हैं, उसको हमको पालन करना पड़ता है। हमारे एथलेटिक के गेम्स होते हैं, हमारे दूसरे गेम्स होते हैं, तो वो भी अनुशासन के अंतर्गत आते हैं, और ये बच्चे उसको सीखते हैं। तो मैं समझता खेल के थ्रू अगर हम अनुशासन को उनको सिखाने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, और बच्चे आसानी से उसको सीखेंगे। इसका मीनिंग क्या है जी, अनुशासन। लेकिन मैं बच्चों को एक चीज़ भी कहना चाहूँगा कि हमको उनसे उनका बचपना नहीं हटाना चाहिए बच्चों से, क्योंकि बचपना एक ऐसी चीज़ है, बचपन जो ऐसी चीज़ है जो हम समझते हैं मानव जीवन की सबसे बड़ी एक स्टेज होती है, जहाँ से हम कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन हम उस बचपन में नहीं लौट पाते। करेक्ट सर, करेक्ट सर। लाइक what kind of leadership is required to take India sports to the next level? May I ask once again, please? What kind of leadership is required to take Indian sports to the next level? Leadership always starts from the head of the department. Correct sir. चाहे वो मेरे घर के माता पिता हों, Yes. चाहे वो स्कूल के मेरे प्रिंसिपल और हमारे दूसरे लोग हों, तो उनका स्पोर्ट्स फीलिंग, स्पोर्ट्समैनशिप या स्पोर्ट्स के प्रति लगाव खेलों को बढ़ावा देता है। ये मैंने महसूस किया है कई जगहों पर कि जहाँ पर हमारे खेल के संस्थान हैं, हमारे जो पढ़ाई के संस्थान हैं, उसमें अगर हमारे हेड्स जो हैं वो अगर स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, तो उनके बच्चे भी उनके बच्चों के अंदर भी वो एक परंपरा जिसको हम कहते हैं ना, वो बनती चली जाती है। कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो पढ़ाई में अच्छे हैं, नो डाउट, इसमें शक नहीं है कि हमको पढ़ना तो ज़रूरी है ही, लेकिन आज खेलों का महत्व भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप देखेंगे कि हमारे एशियाड के अंदर या वर्ल्ड कप के अंदर और ओलंपिक्स के अंदर तो हमारा सारा देश इस बात को उम्मीद करता है। इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहब ने हमारे ओलंपिक के खिलाड़ियों को पर्सनल बातें उन्होंने फ़ोन के ऊपर कहे कि उनको मोटिवेट करने की कोशिश की है। तो ये उसी के अंतर्गत सब आता है कि हमारे बच्चे, हमारे खिलाड़ी जब जाएं खेलने के लिए, तो हमारे पास जो अभी देश की इतनी आबादी है जो 1 अरब 40 करोड़ की करीब, तो उसमें अगर हम 7-8 मेडल सिर्फ लाते हैं ओलंपिक के अंदर, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क, और हमारे ऊपर, हम खिलाड़ियों के ऊपर भी ये एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि आखिर आप इन बच्चों को अपने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं। तो मैं उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की पहली बात करता हूँ। यस सर।
और आपने जो कहा कि लीडरशिप का क्या महत्व है इसके अंदर, लीडरशिप में हमारे पास बच्चों के साथ अब अगर आपने यहाँ पर कई चीज़ें बनाई हैं जैसे बच्चे आकर्षित होते हैं उसमें जाते हैं, चाहे वो आर्ट हो चाहे वो आपके दूसरी कई चीज़ें हों। तो इस तरह से स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए जहाँ पर बच्चे को एथलेटिक की ट्रेनिंग हम थोड़ी सी ऐसी उनके दिमाग में डालें एथलेटिक के लिए, लेकिन ग्राउंड का होना ज़रूरी है। हाँ, बास्केटबॉल तो आजकल हर स्कूल में मिल जाता है क्योंकि छोटी ग्राउंड होती है, लेकिन वो जो बड़े खेल हमारे पास हैं, चाहे उसको हल्का सा फुटबॉल के रूप में ले लें या एथलेटिक फील्ड के लिए उसके में, तो मैंने बहुत कम, शायद बिरले स्कूल होंगे जिनके पास इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो बच्चे को हम आकर्षित कैसे करेंगे? जी सर। बच्चे का दिल तो हर चीज़ को हासिल करने का होता है, कोई भी बच्चा हो, वो कहीं ये भी करना चाहता है, कभी वो भी करना चाहता है, कभी ये भी करना चाहता है, लेकिन स्टिक किसके ऊपर होगा जिस पर उसको ज़्यादा खुशी मिलेगी खेलते वक्त। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। किन स्कूलों में हम क्या क्या चीज़ें हैं उनको बच्चों के लिए रखते हैं, बनाते हैं, तो उसके प्रति तो अब अगर हॉकी यहाँ पर नहीं होती तो बच्चा हॉकी कैसे सीख लेगा? तो उसके सामने जब तक हॉकी नहीं आएगी तो उसको लालच नहीं बढ़ेगा, इंसेंटिव हमको देना होगा बच्चों को खेलने के लिए। और आज खेलों का महत्व, जैसा मैंने कहा, हर जगह है, और आज महत्व के कारण ही तो मैं आज आपके सामने यहाँ पर बैठा हूँ कि हम उन खेलों को इतना महत्व देकर खिलाड़ी के रूप में आप मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। वो इसलिए कि यहाँ के बच्चे आगे बढ़ें, खेलों में अग्रणी हों और मेडल्स स्कूल के लिए, बनखेड़ी के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और देश के लिए वो हासिल करें। लेकिन उसके लिए सुविधाएं और उस तरह की सोच की बात भी मैंने कह दी। जब तक हेड्स के बारे में नहीं हो, इस बारे में हेड्स नहीं होंगे, के दिमाग में नहीं होगा, तो शायद उस स्कूल के बच्चे ज़्यादा खेलों में ना निकल पाएँ। लेकिन इन स्कूलों में तो, यहाँ के स्कूलों में तो निकलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, और ये निकलेंगे उम्मीद करता हूँ। लेकिन सुविधाएं और उनको वो ग्राउंड्स देना, अवेलेबल कराना, ये भी हमारा एक दायित्व बनता है। Sir, like as I already mentioned, like in 1972 you had been to Munich, in 1976 you had been to Montreal, in 1972 all of the places you had been to. Sir, tell us our audience about that experience, sir. Like you have been to world tours. It is a very big thing for us. अभी वो आपने, मैं पिछले सवाल के साथ ही आपके सवाल को जोड़ते कर जवाब दे दूंगा इस बात का। जी सर। अब आप मेरी बात, मतलब मैं एग्जाम्पल, मैं आज बात कर रहा हूँ, तो मैंने अपने घर में जब होश संभाला तो मेरे सामने मेरे जो फादर, मेरे अंकल कैप्टन रूप सिंह, जिन्होंने देश के लिए 5 गोल्ड मेडल हासिल किए। जी सर। मेरे पिता के 3, मेरे चाचा जी के 2, मेरा ब्रॉन्ज मेडल जिसको मैं गिनता नहीं था क्योंकि हम लोग सोना लाने वाली टीम हुआ करते थे, और जब मैं ब्रॉन्ज लेकर आया था तो मुझे खुद बुरा लगा था, और मैंने कभी उन मेडल्स को अपने माता पिता को और चाचा को नहीं दिखाया था क्योंकि वो लोग गोल्ड लाते थे। जी सर। तो उनका कैलिबर, क्वालिटी और जो ओलंपिक के अंदर एक रुतबा था वो अलग था, और ब्रॉन्ज मेडल का रुतबा आज भी है, नो डाउट। हम पिछली बार बैक टू बैक भारत की टीम लेकर आई है। लेकिन 40-41 साल के बाद वो लोग तो हर साल हर ओलंपिक के अंदर गोल्ड ला रहे थे। 2 बार हैट्रिक के रूप में हमने, भारत की टीम ने देश को गोल्ड दिलाया और सम्मान हासिल किया। तो ये एक रिकॉर्ड है, और 8 गोल्ड मेडल ओलंपिक के होना को मायने रखता है। पूरे विश्व के अंदर इस तरह की चीज़ नहीं है जो भारत ने, हमने हासिल की है। तो मेरे घर में जब वो मेडल्स देखे और फोटोएं देखी, तस्वीरें देखी, तो वो इंस्पिरेशन अपने आप से पैदा हुई मेरे अंदर कि भाई मुझे हॉकी खेलनी है। हॉकी घर में रखी होती थी, बॉल भी रखी हुई है, और जब बॉल आगे रखी तो मुझे खेलना ही खेलना था। अब किस तरह खेलना वो अलग बात है, लेकिन शौक तो पड़ गया कि मुझे खेलना है। अब शौक को किस तरह खेलना है, इसको हासिल करने के लिए तो आपको बहुत कुछ चीज़ों की ज़रूरत, आवश्यकता पड़ती। चाहे आज के ज़माने हम ट्रेनर की बात कर लें, कोच की बात कर लें, तो वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन उस ज़माने में कोई इस तरह की चीज़ें नहीं थी। आपको जो कुछ सीखना होता था वो आपको खुद ही सीखना था, और वो हमने किया। लोगों को देखकर ये एक बुद्धि मेरे दिमाग में बात आ गई कि मुझे अच्छे खिलाड़ियों को देखना है, अच्छे खिलाड़ियों को दौड़ते हुए देखना है, खेलते हुए देखना है, उसको मैं उसकी कॉपी करके अपने पास मैं ले आ जाऊं। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई, तो हमने किया। बाकी जो 71-72 का मेरा करियर गया, एज आई टोल्ड यू कि हम
सोना जीतने के लिए खेलने। हॉकी से एक्सपेक्टेशन हमारी सोने के साथ है जी आज भी। जी सर। हम अगर जाएं तो हमको सोना चाहिए, गोल्ड चाहिए हमको। हाँ। दूसरे मेडल मिलते हैं नो डाउट, खेल का एक वो है, मिजाज है, कोई बात नहीं, लेकिन भारत की टीम को सोने के लिए लड़ाई लड़नी है, और सोने के लिए लड़ाई लड़ने के लिए बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं, आसानी से ये चीज़ें हासिल नहीं होती हैं। लेकिन उम्मीद है कि हमारे आने वाले वर्ल्ड कप के अंदर जो सीनियर वर्ल्ड कप खेला जाएगा और जिसको 50 सालों से उस मेडल में हम अभी खड़े नहीं हो पाए यस सर। पोडियम पर, यस तो हमारी टीम खड़ी होगी। क्योंकि मैंने वो चीज़ जैसा आपसे कहा जी कि कोई कोचिंग नहीं थी, कोई सुविधाएं नहीं थी, Yes, sir. लेकिन एक सिर्फ टारगेट था कि हमें हाँ। खेलना है। तो मेरा 72 का ओलंपिक भी मैं मानता हूँ मैंने हासिल किया, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था। हाँ वो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं था, देश के लिए सफिशिएंट नहीं था। ओके सर। तो उसके लिए बहुत मेहनत और कंसंट्रेशन कह लीजिए, और वही लफ्ज़ आता है फिर डिसिप्लिन आता है। Discipline, तो आपको अपने टूर्नामेंट खेलने के लिए कितना डिसिप्लिन होना पड़ता है, और जब डिसिप्लिन आप होते हैं तो सबसे बढ़कर जो चीज़ आती है वो है सेक्रीफाइस। यस सर। कि उस डिसिप्लिन के में रहने के लिए कितनी चीज़ें हम छोड़ते हैं, कि टाइम पे उठना, कहीं ओवर ईटिंग ना हो जाए, कहीं हम फालतू में टाइम वेस्ट ना करें, कहीं दूसरी बातों में हमारा दिमाग ना उलझ जाए। तो सब चीज़ों से, और अपने आप को प्रेजेंटेबल ग्राउंड के ऊपर तैयार करके रखना, तो ये सब चीज़ें हमारी शामिल होती हैं। लेकिन ये चीज़ सिर्फ फीलिंग की है, और इनर फीलिंग हर इंसान, हर स्टूडेंट, हर व्यक्ति के अंदर से होना चाहिए। कई चीज़ें होती हैं, और वो सेल्फ डिसिप्लिन भी होता है। ये नहीं कि कोई देख रहा हो तो हम डिसिप्लिन दिखाएं, जी सेल्फ डिसिप्लिन भी हमारे अंदर होना चाहिए। कोई नहीं देख रहा है फिर भी मेरे अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि मेरे इनर सोल को, अपने आप को भी तो मुझे सेटिस्फाई करना है। करेक्ट सर। तो उसके लिए मुझे सब चीज़ें करने की जरूरत होनी चाहिए। जी इनर सोल को, अपने आप को भी तो मुझे सेटिस्फाई करना है। करेक्ट सर। तो उसके लिए मुझे सब चीज़ें करने की जरूरत होनी चाहिए। जी सर। सर, your father was and you are both, you belong to a like a hockey clan, as you said, like Very right. you win only to just for the gold. That is very inspirational thing for me. Sir, the biggest thing that you learned from your father, the biggest thing. उनकी एक लाइन मैं जिंदगी में लेके चला हूँ, खेला हूँ। जी क्योंकि मेरे फादर को 1936 में जब खेलने गए थे बर्लिन ओलंपिक, जी जिसको एडोल्फ हिटलर ने हम्म अरेंज किया था, उसको होस्ट किया था, और इस उम्मीद के साथ कि वो खाली फौज में सबसे बढ़कर लड़ाइयों में और देशों को जीतने में सबसे आगे नहीं है, बल्कि खेलों में भी सबसे आगे है। जी लेकिन ध्यानचंद के उस टीम ने, जब हम गुलाम थे, जी सर। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तब हमने एक भारतीय हॉकी टीम के रूप में जाकर ओके उसकी टीम को हमने उसी के देश में, उसी के लोगों के सामने हमने पराजित किया। और पराजय किसी भी हालत में, कैसी भी हो, पराजय होती है। और भारत ने उनकी टीम को हिटलर के सामने विटनेस कर रहा था, वो उस टीम को 8-1 से हराया था, 8-1। और जब 5वां या 6ठा गोल भारत की टीम मारती है जर्मन के ऊपर, तो हिटलर अपनी सीट छोड़ के उस मैदान से निकल जाता है। सो एक्सेप्ट हिज डिफीट। यस तो ये भी एक डिफीट का एक रूप है, जिसमें कि एक देश ने दूसरे देश को हराया। तो खेलों के द्वारा भी ये चीज़ हम पैदा करते हैं, जो कि बड़ी, और जो हारने वाला है वो भी आके हाथ मिलाता है जीती हुई आदमी को, और जीता हुआ भी उससे हाथ मिलाता है। तो इससे बढ़कर एक जो हमारा मानवीय पहलू है, जी सर। जिसको हम अपने अंदर कहते हैं कि हमारे अंदर जो मानवता है, तो उसका भी एक हमको रूप देखने को मिलता है खेल के द्वारा। कि हारा हुआ आदमी कितना भी हो आके हाथ मिलाएगा, यस यू आर द बेस्ट, आप बेटर हो। यस सर। ध्यानचंद की एक इसी तरह की चीज़ को लेकर मैं बताना चाहूँगा, जो कि मैं 98 में ये सब करने के बाद 1998 में उट्रेक्ट हॉलैंड में वेटरन हॉकी टीम से खेलने गया था। जी सर। भारत की टीम भी उस वर्ल्ड कप में गई थी, वहाँ पर वर्ल्ड कप हो रहा था, हॉकी वर्ल्ड कप। उट्रेक्ट हॉलैंड के अंदर का एक शहर है। जी तो उसमें मैं खेलने गया। तो जब मैं खेल रहा था, तो भारत की टीम कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, वो हार गई पहले ही, अच्छा तो आउट हो गई थी। लेकिन हम क्योंकि वेटरन में मैं गया था, तो फाइनल मैच तक मैंने जी टूर्नामेंट देखा, और
फाइनल मैच जो हुआ है वर्ल्ड कप 98 का, वो स्पेन और हॉलैंड के बीच में हुआ। स्पेन हॉलैंड का फाइनल मैच। और मैं विटनेस के लिए स्टेडियम के अंदर गया हूँ। ट्रैक सूट पहने बैठा था मैं, ऊपर की सीट उसमें सी चेयर के ऊपर। तो मैं जैसे ही बैठा हूँ तो पूरा स्टेडियम करीब 50 60 65 70 हज़ार का स्टेडियम था, और फुल पूरा भर गया। मेरे साथ की 2 सीटें खाली थी। अच्छा सर। 2 सीटें खाली थी, तो मैंने देखा तो एक ओल्ड कपल जो है, ओल्ड कपल चला आ रहा है, बड़ा सूटेड बूटेड, बड़े अच्छे ढंग से कपड़े पहने हुए और एक हैट लगाए हुए वो सज्जन चले आ रहे हैं। ओल्ड थे, करीब 75-80 साल के उनकी उम्र होगी। तो वो चले आ रहे हैं और वो आके उसी सीट पे बैठ गए। अच्छा। जो खाली सीट थी। इतना बड़ा स्टेडियम है, लेकिन वो उसमें आके बैठे। तो मैंने देखा उनकी जो टाई थी वो एक इंडिया के हमारे सेरेमोनियल किट की टाई जैसे होती है, लाइट ब्लू डार्क ब्लू, और कॉटन की होती है। तो वो कॉटन की टाई और लाइट ब्लू डार्क ब्लू पहने, और उनके कपड़े शपड़े इतने अच्छे, और हॉलैंडियर्स हुआ उनका व्यक्तित्व। तो आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ जब वो आके बैठे हैं। सो आई सिंपली आस्क्ड जेंटलमैन कि सर इफ यू डोंट माइंड मे आई आस्क यू वन क्वेश्चन, just for the query. Correct, sir. Said, yes, gentlemen, what do you want to ask? Yes, sir. I said, sir, the tie you are wearing, Yes. It looks like an Indian tie. Cotton. Yes. मैंने कहा ये इंडियन टाई आप कैसे? कहते यस, एकदम से तब यस, दिस इज द इंडियन टाई। अब मेरा और कि भाई इंडियन टाई, हॉलैंड है ये, कोई इंडिया तो है नहीं कि मैं, आई एम नॉट एन इंडियन। Yes. तो आई सेड हाउ कम यू आर वेयरिंग द इंडियन टाई? नाउ दिस टाई इज वेरी प्रीशियस, वेरी वैल्यूएबल फॉर मी। You know, this tie is given me by Mr. Dhyan Chand, Wow, sir. against whom I played in the year 1928. 1928. So after 70 years, he Still wearing preserved that tie, and he said, no, ये टाई तो ध्यानचंद ने मुझे दी थी और मैंने उनसे मांगी थी, because I was so much impressed by his game. I couldn't stop myself. I went to Dhyanchand and asked, Mr. Dhyan, you give me any memento, I want to keep it. So Dhyanchand gave me this tie, and I kept it, and I'm wearing it. I'm feeling proud for it, that this tie belongs to Dhyanchand, the world best player who played in 1928. तो 70 साल के बाद सोचिए आप किस बात को हम लेके चलते हैं दुनिया में। 70 साल के बाद वो इंसान, वो शख्स उस टाई को पहने बैठा है और मेरी बाजू में बैठे हैं, और मैं उनसे सवाल पूछता हूँ। Later on he asked, मुझसे पूछ, gentleman, why you are asking me this question? I said, sir, जिस शख्स ने आपको टाई दी है वो मेरे पिता थे। Wow, sir. Brilliant. वो मेरे पिता थे। Amazing, sir. तो आप सोच सकते हो कि ये कितने भावनात्मक चीज़ों के साथ जुड़ा हमारा हर खेल है। और खड़े हुए कि हाउ इज ध्यान? आई सेड सर ही इज नो मोर, ही एक्सपायर्ड। तो उन्होंने बड़ा दुख जाहिर किया और मुझे गले से लगाया। तो ये चीज़ें हमारे साथ। अब उस ध्यानचंद को मैं कैसे छोटा मानूं, जिसकी टाई 70 साल तक एक इंसान रखे हुए बैठा है और पहन के आ रहा, फीलिंग प्राउड, यस दिस टाई इज गिवन बाय ध्यानचंद। तो ध्यानचंद एक ऐसा नाम हॉकी के अंदर चला दुनिया के अंदर। उस जमाने में जब हमारा देश, मैं मानता हूँ हमारा देश डिवाइडेड था, अलग अलग सूबों, राजाओं में, नवाबों में, जागीरदारों में, बट ध्यानचंद एंड हिज हॉकी टीम, उसने इस देश को एक जगह पे लाके इकट्ठा किया था। वो था 1936 का ओलंपिक, जब टीम को जाने के लिए पैसे नहीं थे। थिंक ऑफ इट, पैसे कौन देगा? कोई मिनिस्ट्री तो है नहीं, अंग्रेज क्यों देंगे, फलाना क्यों देगा, कहाँ से आएगा पैसा, टीम कैसे जाएगी? एंड वी हैड टू डिफेंड आवर थर्ड मेडल आल्सो। तो उसके लिए देश से उस जमाने में अपील करी गई, अपील अखबारों से की गई कि हमारी टीम जा रही है खेलने के लिए, भारत की टीम जो 2 बार की ओलंपिक चैंपियन है, बट वी डोंट हैव द मनी टू सेंड आवर टीम टू पार्टिसिपेट। अब उसका रिएक्शन क्या होता है? दैट इज द हमारा, तब मैं कहूँगा कि ये हमारा भारत देश था जिसके एक एक सूबे ने, एक एक हमारे लोगों ने अपने अपने तरीके से पैसा इकट्ठा किया, चाहे वो 200 रुपये हो, चाहे 10 रुपये हो, चाहे 250 हो। जो बड़ी स्टेटें थी, किसी ने 5000 दिए, किसी ने 7000 दिए, चाहे वो हैदराबाद स्टेट हो, चाहे वो
पटियाला हो, चाहे वो बड़ौदा महाराज हो, मानवदार हो, इन्होंने पैसे दिए और छुटपुट लोगों ने अछूत हमारे पैसे इकट्ठे किए गए। दैट्स हाउ द मनी जो कलेक्ट हुई थी ओलंपिक के लिए वो थी 52,000 52,500 समथिंग। तब हमारी टीम गई है और हमारी टीम गई है तो वहां पर टीम के दिमाग पे ये बात कि इस टीम को भारत के लोगों का सपोर्ट मिला है, हमको जीतना है, एंड वी डिफीटेड जर्मनी बाय 8-1। तो ये इस हॉकी की हिस्ट्री है। और मैं भी ये सोचता हूँ अगर उस टाइम में बिफोर द पार्टीशन अगर हम जीत कर नहीं आते और हॉकी में कुछ नहीं होते तो क्या आज हमारी हॉकी की शेप ये होती जो आज है? नहीं होती। करेक्ट। मुश्किल होता, बहुत मुश्किल होता। तो उसको बनाने वाले वो टीमें थी जिन्होंने बनाई। I have always read about your father. He never, like left me astonished. All the time I read about you also, sir. I have Right. been reading, studying about it. I have studied about like how many countries you have visited before and how many Right. medals we have brought in Olympics and how many things we have done for our nation. That always makes me feel very proud being an Indian. That's no doubt in that. Very and good. the story that you told me about the tie, that I never heard before. And Yeah, that is one yeah. of the fascinating. It touches the heart. Yes, it touches the heart, sir. Sir, only one request. Just my student. She will ask you only. She is a very brilliant student. Only 2 or 3 questions he has. Only take Sure, 2 sure, 3 minutes, sure. sir. I'll be happy. I will